Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is Internet Services and Cyber Safety. The Internet has revolutionized the lives of people by extending its services in all areas. In the previous classes, we learned about a number of useful services available on the Internet like email, e-cards, chatting, online education and finding people. Let us now learn about a few more helpful services available on the इंटरनेट. तो इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को काफ़ी रिवोल्यूशनाइज किया है, ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग इट्स सर्विसेज. जितनी ज़्यादा इंटरनेट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उतना ही आप लोग क्या होते जाते हो और मॉडर्नाइज होते जाते हैं, रिवोल्यूशनाइज होते जाते हो. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जाना था इंटरनेट के सर्विसेज के बारे में, जैसे कि ईमेल था, ई कार्ड था, चैटिंग था. इस चैप्टर में हम और ज़्यादा सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है. Search engine. Search engines are used to search information on the internet. Search engine is a special site on the internet that is designed to help find information stored on other sites. Most search engines allow you to type in a few words in their database. Each one has their own way of deciding what to do about approximate spellings, variations and truncation. The search engine is designed to search for information on the World Wide Web. The www consists of files called web pages containing links. Searching information through a search engine include the following steps. Type the keyword in the search box, click search button or press enter key. The search engine will display an index or related website. तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ग्रैब कर सकते हैं. सपोज आपके टीचर ने कोई भी टॉपिक आपको दिया है, उस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपके पास बुक तो है लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? आप वेब पे जाते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं, ताकि उसकी जो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो और अच्छे से आपको मिल सके. सर्च इंजन जो होता है वो डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि उसमें आप इन्फॉर्मेशंस वगैरह को सर्च कर सको, और इसमें आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिज़ायर्ड टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको उस पर मिल जाती है. आपको क्या करना होता है? सर्च बॉक्स पे आपको कीवर्ड को टाइप करना है. सपोज़ आपको पोल्यूशन पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पोल्यूशन, आपको जो टॉपिक है वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा. इसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर की, तो आपको सर्च इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा उस चीज़ से रिलेटेड. वो आपको रिलेटेड वेबसाइट्स दिखाएगा, वो आपको लिंक्स दिखाएगा, वो आपको पेजेस दिखाएगा जो भी आपके टॉपिक को सारा कंटेन करता होगा. Refining the search. To get more accurate search results, we should make use of the correct keywords in the search box. The various logical and other operations are used to refine a search are given below, and it used to find the web pages with all the given words. For example, to search and display web pages with both the words computer and memory. Type computer and memory in the search text box, or is used to search for the web pages with either of the words. For example, to search and display the web pages with either of the two words, students or scholar. Type student or scholar in the search text box. Note, it is used to search for the web pages without the occurrence of a word. For example, to search and display the web pages with information on radiations except infrared radiation. Type radiations, not infrared radiations in the search text box. For double quote, it is used to retrieve web pages with the exact words. For example, if we want to search for the web pages containing exact phrase, then type the phrase on quotes to avoid individual word search. Example, to search the books of variant books, type variant books double quotes. Fifth, parenthesis. It is used to search for the web pages with multiple conditions. For example, to search and display the web pages with the words computer, peripheral and computer devices, type computer and parenthesis peripheral or devices in the search text box. 6 asterisk.
It is used to find the web pages with all the words that starts or ends with a particular word. For example, to search and display the web pages with the word starting with the word child, like childhood, childish, children, and so on. Type child in the search text box. Colon. It is used to find the precise definition of a term. For example, to find the definition of transpiration, type define transpiration in the search text box. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी सर्च को रिफाइन करते हैं ताकि हमें और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके. अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको करेक्ट कीवर्ड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हम एंड जो है इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो आप कैसे टाइप करेंगे? कंप्यूटर एंड मेमोरी. तो आपको क्या दिखाएगा? वो कंप्यूटर की भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा और उसकी मेमोरी की भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा. और जो होते हैं ये आपके ईदर ऑफ द वर्ड के पेजेस को आपके लिए चूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट और स्कॉलर. तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट पे या फिर स्कॉलर पे. नॉट का मतलब होता है कि आपका कुछ भी नॉट, मतलब आपको एक पर्टिकुलर उस पर चाहिए लेकिन आपको उस चीज़ पे नहीं चाहिए, तो आप दोनों चीज़ों को मेंशन करेंगे. जैसे कि रेडिएशन नॉट इंफ्रारेड, तो आपको रेडिएशन पे इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफ्रारेड पे नहीं चाहिए. डबल कोट्स ये आपके वेब पेजेस को रिट्रीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि एग्जैक्ट वर्ड के साथ होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेरिएंट्स बुक्स पे आपको कुछ सर्च करना है तो आप इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि वेरिएंट्स बुक नाम की हो सकता है काफ़ी सारी बुक्स हो तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. पैरेंथेसिस को यूज़ किया जाता है आपके किसी भी मल्टीपल कंडीशन को वेब पेज पे सर्च करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है एंड डिस्प्ले करना है वेब पेजेस को जो कि होते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल एंड कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जो आपका पैरेंथेसिस है उसके साथ इसको कोड करेंगे एंड देन आप सर्च करेंगे पर्टिकुलर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. एस्टरसिक्स जो होता है ये आपका वेब पेजेस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो स्टार्ट और एंड होते हैं विद अ पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड है, अब चाइल्ड से काफ़ी वर्ड्स बन जाते हैं. चिल्ड्रन बन जाता है, चाइल्डिश बन जाता है, चाइल्डहुड बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वर्ड को स्टार के अंदर, एस्टरिस्क के अंदर आप इसको कोड करेंगे. कॉलोन जो होते हैं ये आपके फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो आपके प्रिसाइज डेफिनेशन को बताते हैं किसी भी टर्म के ऊपर. ठीक है, तो आप जैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसपिरेशन को, ट्रांसपिरेशन एक टर्म होता है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन कोलोन ट्रांसपिरेशन. Now remember the operators like and, or, and, not used in a search phrase should always be capitalized. तो आपके जो ये and, और not operators हैं ये हमेशा आप कैपिटल में ही यूज़ करोगे. The Wiki technology. Wiki is a technology that allows the creation of collaborative websites. A website created using Wiki technology allow people an easy platform to create and continuously edit any number of interlinked web pages. The content of a wiki website are not placed by any one individual. Many people contribute to place new content and revise existing content. The web page http:/en.wikipedia.org. Wikipedia, the free encyclopedia, is not most popular wiki-based website. Other wikis include an online dictionary, parenthesis http://wikionary.org, online books, parenthesis http://wikibooks.org, and many other free learning resources. तो विकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. विकी टेक्नोलॉजी जो है ये आपको अलाउ करती है ताकि जो आपके कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स हैं इनको आप क्रिएट कर सको, इनको आप कंबाइन कर सको. एक वेबसाइट जो होती है विकी टेक्नोलॉजी को जो यूज़ करके बनाई जाती है, इसमें आपके पीपल को, लोगों को अलाउ किया जाता है ताकि वो क्रिएट कर सके एंड कॉन्टिन्यूसली एडिट कर सके नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस को. एक कंटेंट जो होता है विकी पे, विकी वेबसाइट पे, ये आपके प्लेस नहीं किया जाता किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू. ठीक है, ये मैनी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही इसे वहाँ पे पोस्ट किया जाता है या प्लेस किया जाता है.
ठीक है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट इस तरीके से यूज़ की जाती हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है विकीपेज वेबसाइट के नाम से। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विकीपीडिया। विकीपीडिया इज द लार्जेस्ट एवर एक्सपेंडिंग फ्री encyclopedia of knowledge supported by millions of users across the world. Follow the given steps to use this web service. Step 1, type http://www.wikipedia.org/ in the address bar of your browser and press the enter key. This site will open. Step 2, from the page that appears, select the language of your choice from the drop down list. Step 3, type the subject of the topic in the search box and click the search button. The related links may get listed below the search box. Step 4, click on the appropriate link. A Wikipedia page showing an article related to the search type will be displayed. विकीपीडिया से इन्फॉर्मेशन कैसे लें? विकीपीडिया एक लार्जेस्ट एवर एक्सपेंडिंग फ्री इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज का, जिसे सपोर्ट किया जाता है मिलियन ऑफ यूजर्स के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे URL टाइप करेंगे, ठीक है, एड्रेस बार में, एंड आप प्रेस करेंगे एंटर की को, आपके सामने साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ पे पेज में आपके सामने आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी चॉइस की फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन आप टाइप करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक को इन द सर्च बॉक्स। फिर आप क्लिक करेंगे सर्च बटन पे, तो आपको रिलेटेड लिंक जो है वो ओपन होके मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे अप्रोप्रिएट लिंक पे। एक विकीपीडिया पेज जो है उस आर्टिकल को लेकर के आपके सामने विजिबल हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इज ऑल्सो कॉल्ड VoIP और वॉइस Internet Protocol. People use the internet to make telephone calls instead of regular telephone connections. This cut down STD and ISD calls. Some VoIP sites are Skype and CoolTalk. तो इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम VoIP और वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। कई लोग जो होते हैं वो STD एंड ISD की जो सप्लाई होती है उससे कट डाउन करके ये जो VoIP ऐप्स हैं, साइट्स हैं, इन्हें ये यूज़ करते हैं, जैसे कि स्काइप एंड CoolTalk। स्काइप क्या है? स्काइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन और VoIP सर्विसेज। इट वाज फाउंडेड इन 2003 बाय निकोलस जेनस्ट्रॉम एंड जेनस फ्रीज व्हेन they created a little piece of software that made communicating with people around the world easy and fun. To use the Skype on your computer, we need the following basic things: a high-speed internet connection, speakers or headphones, and a microphone, a webcam to make video calls. The Skype application, we can download the Skype application free of cost from the internet. स्काइपे क्या है? स्काइपे आपका काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन मानी जाती है, VoIP सर्विस मानी जाती है। इसको 2003 में फाउंड किया गया था निकोलस जेनस्ट्रॉम एंड जेनस फ्रीज के थ्रू। अब इसमें आप क्या करते हो? इसमें ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देता है, स्पीकर, हेडफोन एंड माइक्रोफोन होता है जिससे आप बात कर पाते हो, एक वेबकैम होता है जिससे आप वीडियो कॉल कर पाते हो, सामने वाले को देख पाते हो। इसके लिए आपको स्काइप एप्लीकेशन चाहिए होती है जो कि आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर पाते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। Using the Skype to make a video call. Once we have downloaded and installed Skype on our computer, the next step is to find our family, friends and colleagues who are using Skype and add them to our contact list. Thereafter, we can make a voice or video call to anyone on our contact list anywhere in the world or free. Follow the given steps to this. Step 1, open the Skype application on your computer and click on contacts. Step 2, find the person you want to call from your contact list. Step 3, click the contact. You will see their details in the main window. If the contact has one of these status icons displayed next to their name, it means that they are on Skype and you can call them for free. Step 4, click the call button to make a voice call or the video call button to make a video call. The screen changes color and you will hear a ringing sound until the other person answers. Step 5, at the end of the call, click the end call button to hang up.
अब हम जान लेते हैं कैसे हम स्काइप पे को यूज़ करके कोई वीडियो कॉल या वॉइस कॉल कर सकते हैं। जब हम स्काइप पे को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को सर्च करते हैं जो कि स्काइप पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। जब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट हम ऐड कर लेते हैं तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। आपको स्काइप पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर पे एंड आपको कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। फिर जिस भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पे। तब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी मेन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कॉन्टैक्ट जो होगा वो इन में से एक स्टेटस आइकन के साथ डिस्प्ले हो रहा होगा नेक्स्ट टू देयर नेम, तो इसका मतलब वो है स्काइप पे, ठीक है। और आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉल बटन पे क्लिक करेंगे अगर आप वॉइस कॉल करना चाहते हैं, और अगर आप उनको वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो एक वीडियो का छोटा सा बटन वहाँ पे नज़र आ रहा होगा वीडियो कॉल करने के लिए। स्क्रीन अपने आप चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा और एक जो साउंड होता है रिंग का वो आपको बजने लगेगा, ठीक है। ये तब तक बजता रहेगा जब तक सामने वाला वो कॉल रिसीव नहीं कर लेता। फिर जब आप बात कर लोगे तो आप अपनी कॉल को एंड करोगे, इस तरह का आपको एंड बटन वहाँ पे नज़र आएगा। Do you know the Skype Communications company that owned Skype software was purchased by Microsoft Corporation in 2011? तो ये जो Skype कम्युनिकेशन था ये किसी और ने इसे बनाया था, लेकिन इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा परचेज कर लिया गया था 2011 में। Now blogs. The term blog is derived from the term web blog. A blog is a type of website usually maintained by an individual. It contains regular entries of commentary, description of event or some other material such as graphics or videos. Blog allows means to maintain or add contents to a blog. There are different types of blogs like personal blog, corporate blog and moblog. The mostly used blog is personal blog. The blog site www.blogada.com provides Indian bloggers a place to create and show their blogs. Some of the popular blogging websites are www.wordpress.com, www.lovejournal.com, www.bloggers.com, www.tumblr.com. ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स एक टर्म है जो वेब ब्लॉग से डिराइव हुआ है। ब्लॉग एक टाइप की आपकी वेबसाइट है जो विजुअली मेंटेन की जाती है एक पर्सनल के थ्रू, एक इंडिविजुअल के थ्रू मेंटेन की जाती है। इसमें आपके डे टू डे लाइफ के बारे में जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जो भी आप वहाँ पे एंट्री डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका पर्सनल डायरी की तरह होता है जिसमें आप अपने डे टू डे लाइफ के बारे में, अपने एडवेंचर के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और लोग इसमें क्या करते हैं, कमेंट्री करते हैं, कुछ ना कुछ वो कमेंट इसमें पोस्ट करते हैं। ब्लॉग्स भी आपके कई तरीके के होते हैं, पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड मो ब्लॉग, लेकिन आजकल ज़्यादातर पर्सनल ब्लॉग चल रहा है क्योंकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनसे भी वो ओपिनियन वगैरह लेते हैं। हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग? वी कैन क्रिएट अ ब्लॉग ऑफ आवर ओन ऑन द वेबसाइट www.blogger.com and use it to upload information using the steps given below. Step 1, open the site www.blogger.com. The Blogger site will open. Step 2, sign in using your Gmail username and password. Step 3, you will get the welcome to Blogger screen. Click on create a limited blogger profile button. Step 4, specify a name in the display name text box. This name will appear as your signature in the article you will post on the blog. Step 5, click on the continue to blogger button, a new screen appear. Step 6, click the new blog button, a new window appears. Step 7, enter the title in the title box. Step 8, enter the address in the address box. Step 9, click the create button, blog button, a new screen appears. Your blog is created. Step 10, click on the start blogging, start posting. Step 11, enter a post to publish in your blog, allowing readers to comment. Step 12, click on the publish post button. तो हम जान लेते हैं कैसे हम अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट दी गई हैं जिसमें आप अपना ब्लॉग जो है खुद का बना सकते हैं। इसके लिए हम ओपन करेंगे साइट www.bloggers.com ताकि हम अपना ब्लॉग जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकें। आपको यहाँ पे साइन इन करना है यूजिंग योर जीमेल यूज़र एंड
पासवर्ड। इसके बाद आप वेलकम टू ब्लॉगर स्क्रीन पे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। देन आपको क्लिक करना है क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल बटन पे। आपको स्पेसिफाई करना है इन द डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स, एक नेम जो होगा वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा एज योर सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन पे क्लिक करना है, एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन आपको न्यू ब्लॉग बटन पे क्लिक करना है, वहाँ पे भी आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे टाइटल बॉक्स पे टाइटल को एंटर करना है। इसके बाद एड्रेस बॉक्स में आप एड्रेस मेंशन करेंगे। देन क्रिएट ब्लॉग बटन पे आप जाएंगे, एक न्यू स्क्रीन दोबारा से आपके सामने अपीयर हो जाएगी, यहाँ पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे स्टार्ट ब्लॉगिंग या फिर स्टार्ट पोस्टिंग पे। फिर आप यहाँ पे अपना पोस्ट को एंटर करेंगे जिसे आप पब्लिश करना चाहेंगे और लोगों के साथ, और साथ ही साथ आप रीडर्स को जो उसे पढ़ेंगे उनको आप अलाउ करेंगे कि वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सके। उसके बाद आप पब्लिश पोस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी, लोगों तक वो पहुँच जाएगी। लेट अस रिवाइंड। सर्च इंजन इज डिजाइन टू सर्च for information on the World Wide Web. Wiki is a technology that allows the creation of collaborative websites. Wikipedia is the world's largest ever expanding online encyclopedia. Anybody can use it to get information on any topic free of cost. Skype is one of the most popular application or voice over internet protocol services. A blog is an easy to create website that allows user to share their thoughts with the world. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.